Good day to all and very warm welcome to my channel. My channel name is Harita Sadrani. I am explaining you State Board Standard 4 History subject Shiva Chhatrapati. Till now I have explained 7 lessons from Shiva Chhatrapati. Today I am going to explain you new lesson number 8, defeat of internal enemies. This is the first part of this lesson. So listen to it very carefully. Lesson number 8, defeat of internal enemies. We all know that the dream of Shivaji was to establish Swaraj in Maharashtra. And to establish Swaraj in Maharashtra, it was very important to defeat or to keep away the enemies, outside enemies, the foreign enemies, right? Who were there? Right, you know that. Mughal Emperor, Adil Shah, Portuguese and Sindhis. But it was very, very important to also control or defeat the enemies which were within the state. जो घर के लोग जो दुश्मन बन के बैठे थे उनको हराना भी उतना ही ज़रूरी था जितना बाहर के दुश्मन को हराना. Right? So in this lesson we will read how did the Shivaji defeated the internal enemies and led his step towards the establishment of Swaraj. Okay, I will read the paragraph and do the explanation simultaneously. By use of force. Okay, by use of force, the heading tells us that the Shivaji must have fought with such internal enemies who were not readily willing to be a part of the Swaraj. ओके हम इस हेडिंग से हमें ये समझ में आता है कि शिवाजी ने ज़रूर ऐसे लोगों के साथ युद्ध किया होगा जो उनके साथ आसानी से आने के लिए रेडी नहीं थे या जो स्वराज्य की स्थापना में उनकी मदद नहीं कर रहे थे. ओके, नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी. द Mavaras ऑफ 12 Mavars gathered around Shivaji, ready to do his bidding. We all know that. Okay, in the last chapter, the Mavaras of or the Deshmukhs also agreed to help Shivaji in the work of Swaraj, and they all were ready to do whatever Shivaji says. Okay, bidding means to offer. They lived for स्वराज एंड वो विलिंग टू डाई फॉर इट. वो स्वराज्य के लिए ही जी रहे थे और स्वराज्य के लिए अपनी जान देने के लिए भी वो रेडी थे. दे वर सिंपल मराठा फोक्स. दे लव्ड शिवाजी मोर देन देयर लाइफ. ये सभी बहुत ही सीधे साधे लोग थे. जो मावरास थे बहुत ही सीधे साधे भोले भाले लोग थे. फोक मीन्स जो बोलते हैं लोकल एरिया में रहते हैं लोग, लोकलाइट्स. ओके, जो लोकल है या जो गांव वाले हैं उनको हम फोक करके यहाँ पे संबोधित किया है. राइट, सो द लोकल या द मावरास वर वेरी इनोसेंट. दे लव्ड शिवाजी एंड दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर शिवाजी. बट सम पीपल वर jealous of Shivaji's achievement. He had to bring such people to books. Yes, there were many people who were with Shivaji and there were also many people who were against Shivaji. बहुत सारे लोग शिवाजी को पसंद करते थे और बहुत सारे लोग शिवाजी को नापसंद करते थे. तो अब शिवाजी के सामने क्या बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ लेके आए जो उनसे जलते थे. ओके, बिकॉज देयर वर मैनी पीपल हु वर having the jealous feeling for Shivaji. So this was a main task for Shivaji to bring such people in the books. In the books मतलब अपने साथ लेके चलना या उनको सबक सिखाना. Khandoji and Baji Ghorpade were the two Sardars in the service of Adil Shah. The Shah
incited them against Shivaji. They created lot of trouble in the Kondhana district, but Shivaji was more than a match for them. He defeated and drawn them out. Okay? So, as we know, this lesson tells about the internal enemies. Who were the internal enemies? Internal मतलब अंदरूनी दुश्मन. घर के ही दुश्मन कौन थे, घर के अंदर के ही दुश्मन कौन थे, ये इस लेसन में बताया है हमको, राइट. तो सबसे पहले हम जो पहले दुश्मन हमको जिसके बारे में हमें पता चला वो ये दोनों थे. एक थे खंडोजी और बाजी घोरपड़े. ये दोनों कौन थे? ये दोनों मराठा सरदार थे और आदिल शाह के कोर्ट में ये काम करते थे या आदिल शाह के लिए काम करते थे. आदिल शाह सबको पता है शिवाजी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन, जो हमेशा शिवाजी को हराना चाहता था, लेकिन कभी भी वो इस काम में सक्सेस उनको मिली नहीं. ही वॉज नेवर सक्सेस इन डिफीटिंग शिवाजी. सो दिस टाइम आदिल शाह डिसाइडेड टू टेक हिज 2 मराठा सरदार्स एंड fight with Shivaji or make them stand against Shivaji. For this, उसने क्या किया? उन्होंने incited means उत्तेजित किया. आदिल शाह ने इन दोनों सरदारों को उत्तेजित किया, भड़काया. किसके अगेंस्ट? शिवाजी के अगेंस्ट. उनके कान भरे, इन दोनों के शिवाजी के अगेंस्ट कान भरे. अब ये दोनों जो सरदार थे, मराठा सरदार, देखिए घर के ही लोग हैं, मराठास है, और इन्होंने शिवाजी के अगेंस्ट युद्ध करना शुरू किया या कहा कि अब हम युद्ध करेंगे या शिवाजी को परेशान करेंगे. जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम शिवाजी के अगेंस्ट खड़े रहेंगे, इन दोनों ने कोंढाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत परेशानी खड़ी की. कोंढाना डिस्ट्रिक्ट में लूट मार मचाई, लोगों को परेशान किया, राइट. बट जो शिवाजी थे वो बहुत ही ताकतवर थे. वो इन दोनों को उन्होंने हरा दिया और कोंढाना से दूर भगा दिया. आपको क्या लगता है कि आदिल शाह ने इन दोनों को क्यों भड़काया होगा शिवाजी के अगेंस्ट? ताकि शिवाजी का जो मेन उद्देश्य था स्वराज्य की स्थापना, उससे वो थोड़े दूर चले जाए, उनका ध्यान इन छोटी मोटी लड़ाइयों पर जाए और वो स्वराज्य की स्थापना के जो उन्होंने निश्चय किया है उस निश्चय से वो दूर हो जाए. यही मेन चाल थी आदिल शाह की. लेकिन इसमें आदिल शाह सक्सेस मिली नहीं. इन 2 मराठा सरदार को भी, खंडोजी और बाजी घोरपड़े को भी इस में सक्सेस नहीं मिली. उल्टा इन दोनों को शिवाजी ने कोंढाना से भगा दिया, उनको हरा कर भगा दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. बजाजी नाइक निम्बालकर ऑफ पलटन was Shivaji's own brother-in-law. बजाजी नाइक निम्बालकर कहाँ से? पलटन से. जो शिवाजी के सगे, ओन मीन्स सगे, ब्रदर इन लॉ मीन्स साले साहब, उनकी पत्नी सईबाई के भाई, राइट. ये आपको नेम द पर्सन में आ सकता है. बट शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मैनी बैटल्स अगेंस्ट हिम. देखिए, ये खुद के पत्नी के ही सगे भाई थे, उनके पत्नी के ही सगे भाई थे, बट फिर भी शिवाजी महाराज को इनके साथ बहुत सारे युद्ध करने पड़े. हाउएवर, लेटर ऑन मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली स्टूड बाय शिवाजी महाराज. बाद में समय कुछ गुजरने के बाद जो इनके फैमिलीज़ के जो मेंबर थे, किसकी फैमिलीज़ के मेंबर? निम्बालकर फैमिलीज़ के जो मेंबर थे, दूसरे लोग, वो शिवाजी के साथ मिल गए या शिवाजी के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली. देखिए, ये भी एक घर के ही दुश्मन निकले जिन्होंने बार बार शिवाजी के साथ युद्ध किया, लेकिन आगे चल के इनके ही परिवार से कुछ लोग मिल गए शिवाजी के साथ या उन्होंने शिवाजी के साथ जाके दोस्ती कर ली. नेक्स्ट पैराग्राफ. संभाजी मोहिते ऑफ सोपे, a near relative of Shivaji, also started plotting against Shivaji. संभाजी मोहिते जो शिवाजी के नज़दीक के रिश्तेदार थे, क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ शिवाजी, कहाँ पे रहते थे? सोपे. वे भी मतलब संभाजी मोहिते ने भी शिवाजी के अगेंस्ट
कुछ षड्यंत्र करना शुरू किया, दुश्मन से हाथ मिलाना उन्होंने शुरू किया। प्लॉटिंग मीन्स षड्यंत्र करना, प्लानिंग करना शिवाजी के अगेंस्ट। शिवाजी अरेस्टेड हिम एट सोपे एंड बैनिश्ड हिम टू कर्नाटक। जैसे ही शिवाजी को पता चला कि ये संभाजी मोहिते मेरे अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर रहा है, दुश्मनों से हाथ मिला रहा है या दुश्मनों से उन्होंने दोस्ती कर ली है, उसी समय शिवाजी ने संभाजी मोहिते को सोपे में गिरफ्तार कर लिया। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार कर लिया और उनको बैनिश्ड किया। बैनिश मतलब देश निकाला दिया या महाराष्ट्र से उनको दूर कर दिया और भेज दिया कर्नाटक में। ओके, विथ शिवाजी ड्यूटी केम फर्स्ट एंड रिलेटिव आफ्टरवर्ड्स। इस पूरी घटना से शिवाजी ने ये बता दिया कि मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले आता है और बाद में मेरे रिलेटिव्स या मेरे प्रियजन या मेरे परिवार के लोग। In this paragraph, we will read about one of the internal enemy of Shivaji and how Shivaji defeated him. Okay, the name of the enemy was Chandrarao More of Javli. Javli is the place in Maharashtra. Let me read and explain it. It's very interesting to know about this story. Okay, so listen to it very carefully. The greatest of Shivaji's achievement was recognized and uploaded everywhere. अब जो शिवाजी की जो शिवाजी ने युद्ध लड़े या जो उन्होंने काम किए, तोड़ना को कैसे उन्होंने जीता, तोड़ना पे मिले हुई धनराशि का उन्होंने कैसे उपयोग किया, अपने जागीर पुणे और उसके आसपास की जो टेरिटरीज थी उस पे उन्होंने कैसे वेलफेयर के काम किए, कैसे देशमुख जो है जो पहले उनके अगेंस्ट थे, 12 देशमुख्स, राइट, हु ऑल वर अगेंस्ट शिवाजी, how he made them, how he brought them together and made them to work for the one purpose, that is achievement of स्वराज। ये सब बातें धीरे धीरे अब लोकल पब्लिक को पता चलने लगी। और अचीवमेंट्स मीन्स वही उनकी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया, उन्होंने क्या क्या काम किया या उन्होंने क्या क्या जीत हासिल की, वो सब। रिकॉग्नाइज मतलब लोग अभी उन्हें पहचानने लगे, लोग उनके बारे में जानने लगे, लोगों ने उनके काम को जाना सुना। ओके, रिकॉग्नाइज। अपलोडेड मीन्स उनकी प्रशंसा होने लगी, उनको लोग चाहने लगे, उनकी वाहवाह होने लगी, राइट। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट शिवाजी नाउ बिकेम अ फेमस मराठा सरदार in Maharashtra and people started knowing him. Okay, he captivated the hearts of his people. He stands for Shivaji. Captivated means लोगों के दिल में जगह कर ली, मोहित, कैप्चर हम बोल सकते हैं। अब शिवाजी ने लोगों के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। ओके, सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये शिवाजी पसंद नहीं थे या शिवाजी ने जो काम किए थे वो उन्हें पसंद नहीं थे। ऐसे होता ही है, कुछ लोगों को शिवाजी पसंद थे तो कुछ लोगों को शिवाजी नहीं पसंद थे, राइट। दे लुक्ड अपॉन शिवाजी हैज़ अ मोले इन द आई। मोले इन द आई एक मुहावरा, जैसे हिंदी का एक मुहावरा या हिंदी में हम एक यूज़ करते हैं बोलते समय कि आँखों में चुभना। ओके, मतलब लोग अब जो लोग उनसे जलते थे, उनको पसंद नहीं करते थे, अब शिवाजी उनकी आँखों में खटक रहे थे, हम ऐसे बोल सकते हैं, शिवाजी को पसंद नहीं कर रहे थे। द मोरेस ऑफ जावलीस वॉज वन सच पर्सन। तो मोरेस कौन थे? मोरेस ऐसे ही लोगों में से थे जो शिवाजी को नापसंद करते थे। और इस किस एरिया से वो बिलोंग करते थे? जावली, वन ऑफ द एरिया ऑफ जावली इन महाराष्ट्र। ओके, मोरेस वॉज द जागीरदार ऑफ जावलीस। तो हु वॉज दिस मोरेस? मोरेस जो थे वो जागीरदार थे जावली के, और जागीर कौन सी थी उनकी? जावली। ओके, दिस जागीर विच extended from Raigad to Koyna
वैली। तो ये जागीर कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंडेड या फैली हुई थी, कहाँ से लेकर, बहुत बड़ी थी। देखो, रायगढ़ से लेकर कोयना वैली तक। अलॉन्ग विद द टाइटल चंद्रराव, मतलब उनको जो टाइटल मतलब हम बोल सकते हैं उपाधि दी गई थी। एक राजा के तरफ से उनको उपाधि मिलना या मिली थी, वो थी चंद्रराव। मतलब यहाँ पर जो हमने नाम पढ़ा चंद्रराव मोरे, चंद्रराव किसी इंसान का नाम नहीं है, वो एक टाइटल है उनके नाम के आगे। जैसे हम डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर एक टाइटल है, राइट। तो टाइटल दिया गया है उनके नाम के आगे। was conferred upon him by आदिल शाह। तो ये किसने टाइटल दिया था, ये पूछा जाता है। ओके, कौन सा टाइटल था? चंद्रराव। किसको दिया गया था? मोरे ऑफ जावली। किसने दिया था? आदिल शाह ने। ओके, जावली was covered with such a thick forest that even during broad daylight the sun rays hardly penetrated it. ओके, अब जावली कैसा था वो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया। हाउ वॉज जावली? तो जावली वॉज अ वेरी वेरी थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल था। दिन के समय में भी उस जंगल में सूरज की किरणें बहुत मुश्किल से आती थी। पेनिट्रेट मतलब आर पार। ओके, इट वॉज सचली थिक फॉरेस्ट दैट इवन ड्यूरिंग अ डे टाइम the sun rays cannot penetrate, cannot pass through the trees of the forest। मतलब एकदम झाड़ियों से खचाखच भरा हुआ जंगल था। कौन सा? जावली। मतलब जावली एक जंगली या एक जंगल वाला इलाका था। It was full of wildlife. Tigers, wolves, bears roamed freely in the Javli forest। तो ये पूरा जंगली इलाका था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। यहाँ पर जैसे नाम दिया है टाइगर्स, वुल्फ्स, बियर्स, ये सब आराम से घूमते थे। जंगल है तो जंगली जानवर तो रहेंगे वहाँ पर, राइट। मोरेस जावली वॉज दस लाइक अ टाइगर्स हाइट आउट। तो यहाँ पर जावली को बोला गया है कि जैसे एक टाइगर की गुफा होती है जहाँ पर टाइगर का राज होता है, वैसे ये एक भयानक प्लेस थी जावली, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा आता जाता नहीं था। नो वन देयरफॉर क्रॉस द जावलीज पाथ, ओनली शिवाजी हैड अ करेज टू डू सो। ओके, इसलिए अभी तक इस जावली को कोई अपने मतलब बोलते किसी ने उसको पार नहीं किया, या किसी ने वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं की, या किसी ने इन मोरेस को हराने की हिम्मत अभी तक नहीं बताई। क्यों? क्योंकि जावली का जो एरिया था वो घने जंगल से भरा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर थे और सबसे ज़्यादा डरा कौन था वहाँ पे? टाइगर्स थे, राइट। तो वो एक खतरनाक एरिया था जहाँ पर कोई अपनी सेना लेके जाना नहीं चाहता था या जाने से डरता था। लेकिन इन सब में एक जो थे वो थे शिवाजी, जिन्होंने जो इस जंगल से या इस जंगल में जो जानवर थे उनसे वो डरे नहीं, और उन्होंने आखिर में आगे जो क्या किया जावली में, उन्होंने कैसे किया, जावली को कैसे अपने कब्जे में किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। दौलत राव मोरे डाइड इन 1645। Who is this Daulat Rao More? Daulat Rao More was the Chandra Rao of Javli, Jagirdar of Javli. He died in 1645. Keep this in mind, it may come as an objective question. There was a fight for the succession among his descendants. After the death of Daulat Rao More, there was a fight among his family members that who will become the next Chandra Rao, or who will become the next Jagirdar of Javli. Descendants means the family members who left behind after the death of Daulat Rao More. Shivaji backed Yashwant Rao More, who with Shivaji's help ascended the गादी एज चंद्रराव। शिवाजी ने यशवंतराव मोरे, जो एक
मौर्य फैमिली से बिलोंग करते थे। शिवाजी ने यशवंतराव मौर्य को सपोर्ट किया और उनकी मदद से, शिवाजी की मदद से यशवंतराव मौर्य चंद्र राव बने जावली के, और जावली की गद्दी पे, राज गद्दी पे वो एज अ चंद्रराव बैठे। इन रिटर्न फॉर शिवाजीज हेल्प, यशवंतराव promised to help Shivaji in his struggle and also pay him an annual tribute. Now, Shivaji helped Yashwantrao to become the Chandrarao of Javli. So, in return of this help, Yashwantrao promised Shivaji that he will help Shivaji in the fight of Swaraj, for fighting against the enemies, for establishing the Swaraj. And also he promised to pay certain amount as a tribute to Shivaji annually. Tribute means, we can say, something given with deep respect. Okay, when we give respect to some person, that we call as a tribute. We can say for a thanksgiving attitude. Okay, but he forgot all this once he succeeded to the गद्दी. बट ये जो यशवंत राव है, सब बातें भूल गए जैसे ही वो चंद्रराव की गादी पर बैठ गए। ओके, जैसे ही वो चंद्रराव बन गए जावली के, वो ये जो सब प्रॉमिस किया था उन्होंने शिवाजी को कि वो उनको मदद करेंगे स्वराज्य के लिए, उनको कुछ पैसे भी देंगे हर साल, वो भी उन्होंने नहीं दिए या वो उनको भूल गए। He became impertinent and troublesome. He stands for यशवंतराव. यशवंतराव अपने वादे तो भूल गए, जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था शिवाजी से, वो तो भूल गए, लेकिन भूलने के बाद वो बहुत ही इम्पर्टिनेंट हुए। इम्पर्टिनेंट मतलब रूड, हम जिसे कहते हैं एहसान फरामोश हो गए। शिवाजी के एहसानों को वो भूल गए, शिवाजी की मदद को वो भूल गए और उनको तंग करने लगे। ट्रबलसम मतलब किसी के लिए परेशानी खड़ा करना, किसी के लिए नुकसानदायक बनना, ऐसे वो बन गए। राइट, ही स्टार्टेड अटैकिंग शिवाजीज टेरिटरी एंड हैरासिंग द पीपल। उन्होंने एहसान फरामोश बन गए, इम्पर्टिनेंट, रूड बन गए और क्या करने लगे, शिवाजी के किंगडम पर या शिवाजी के जो एरिया थे, टेरिटरी थे, उस पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया, वहाँ के जो लोग थे उनको परेशान करना शुरू किया। शिवाजी रियलाइज दैट अनलेस मोरेज वॉज पनिश्ड ही वुड रिमेन अ कॉन्स्टेंट डेंजर टू स्वराज। शिवाजी समझ गए अब ये जो मोरे है, यशवंतराव जो है, उसे मुझे पनिश करना पड़ेगा, उसे मुझे सज़ा देनी पड़ेगी या उसे अभी सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर ये स्वराज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ओके, ही विल बिकम अ डेंजर फॉर अ स्वराज। सो दैट्स वाई शिवाजी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस enemy. Today I will like to stop here. Okay, this will be the first part of this lesson. The remaining part I will explain in the second part of this lesson. Hope you liked my explanation and also understood till here. So please like and share my videos and also subscribe to my channel. So stay home, stay safe. Bye to all.